to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. For now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Sabaa shares unseen Khan Khemu Khandan pictures with Kareena, Saif, Soha and Kunal Khemu. Bhoot Police to release on an OTT platform. The Family Man 2 lands in trouble as netizens protest portrayal of Tamil group as terrorist organization. Netizens laud Salman Khan as superstar arranges 500 free oxygen concentrators for COVID-19 patients. How actors reacted to being compared to other film stars. सबा अली खान ने शेयर की अपनी पूरी फैमिली की कुछ अनसीन तस्वीरें। तैमूर, करीना, सैफ, सोहा, कुणाल और इनाया के साथ खूबसूरत फैमिली फोटोज पोस्ट किए सोहा ने अपनी सोशल मीडिया पेज पे। Saif and his siblings share a special bond, and over the years, Kareena, Kunal, and then Taimur, Inaya, and now the littlest Pataudi have only brought the family closer together. सबा जो सैफ से छोटी और सोहा से बड़ी है, often shares pictures of her family, especially उनके adorable nephew और niece के साथ जो उनके आंखों के तारे हैं। सबा हम सब की तरह ही अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही है। She also seems to be missing holidays and traveling with her extended family, just like so many of us. तैमूर और इनाया की चहीती बुआ ने अपने सोशल मीडिया पेज पे कुछ थ्रोबैक फोटोज शेयर किए, जहां वो अपने बड़े भाई सैफ, छोटी बहन सोहा, भाभी और जीजा जी करीना और कुणाल, छोटे तैमूर और इनाया के साथ किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन पे है। फोटो में सभी कैजुअली ड्रेस्ड है and seem to be at a resort or beachside location. तस्वीर में तैमूर और इनाया दोनों ही बहुत छोटे हैं, so it looks like the picture was clicked a few years ago, जब ना पैंडेमिक था, ना अपने परिवार से दूर रहने की मजबूरी। सबा captioned the picture, flashback, part 2, KKK, Khan, Khemu, Khandan. I had the original pic, so here's the rest of the gang. फोटो में करीना और सैफ दोनों कैजुअल ब्लैक टी-शर्ट्स में हैं, while little Taimur seems to be in a swimming costume, proudly showing off his little biceps. पूरे खानदान के फोटो के साथ-साथ सबा shared another picture जिसमें तैमूर और करीना मिसिंग है, but the rest of the gang seems to be hanging out by the pool. Sabaa captioned the photo, flashback, family ties, we stick together. Been wanting to post this for a while. Simple, carefree and happy times. They are all posing next to a swimming pool और छोटी सी इनाया adorable लग रही है। Also recently shared a video montage on her social media page जहां उन्होंने अपने घर में रखे फैमिली फोटोज को एडिट करके वीडियो बनाया। पैंडेमिक के सेकेंड वेव में क्या ए-लिस्ट स्टार्स फिर चूज करेंगे OTT का रास्ता? सैफ अली खान स्टारर भूत पुलिस, अजय देवगन की मैदान और सलमान की अंतिम क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होंगे? Just when theaters were opening and shoots had resumed, पैंडेमिक के सेकेंड वेव ने इंडिया को तोड़ के रख दिया। Mumbai and many other parts of the country have gone into lockdown-like mode and theaters are closed. इस ongoing crisis की वजह से कई फिल्म्स का फ्यूचर अब खतरे में है। We are hearing from sources that Saif Ali Khan, Yami Gautam, Arjun Kapoor and Jacqueline Fernandez की फिल्म भूत पुलिस डायरेक्टली एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी। भूत पुलिस की शूटिंग इस साल जनवरी में रैप हुई थी and the plan was to release it in September.
लेकिन given all the uncertainty currently, the makers seem to be choosing a guaranteed release via a streaming platform. Recently, Vidya Balan also shared that her film Sherni will be premiering on an OTT platform next month. पिछले साल भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे स्मॉल बजट से लेके बिग बजट फिल्म्स का ऑनलाइन प्रीमियर हुआ था after the first wave of the pandemic shut theaters down for several months. Though things were positive in the beginning of the year, और कई प्रोडक्शन हाउसेस इंक्लूडिंग YRF ने अपनी फिल्म्स के थिएट्रिकल रिलीज प्लान्स शेयर किए थे, कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया है. After people saw Radhe, in spite of there being a 249 pay per view charge, filmmakers और OTT platform owners दोनों hopeful है कि दूसरी बिग बजट फिल्म्स भी ऑनलाइन रिलीज या हाइब्रिड रिलीज मॉडल को अपना सकती है. There are rumors कि सलमान की फिल्म अंतिम और अजय देवगन की फिल्म मैदान दोनों ही शायद OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होंगी. Some suggest that even the makers of 83 and Suryavanshi may be in talks with streaming platforms for a direct-to-web release. One can only hope that अगले साल at least हम सब थिएटर्स में सबके साथ फिल्म देख सके. मनोज बाजपेयी और समांथा अकिनेनी स्टारर द फैमिली मैन 2 ट्रेलर रिलीज होते ही कंट्रोवर्सीज में फंस गया है. श्रीलंका के तमिल सेपरेटिस्ट को आतंकवादियों की तरह डिपिक्ट किए जाने पर नाराज हुई तमिल ऑडियंस. समांथा, जो इस सीरीज में एंटागनिस्ट राजी का रोल प्ले करेंगी, इज फेसिंग थ्रेट्स और #FamilyMan2 अगेंस्ट तमिल सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है. आजकल अक्सर फिल्म्स या फिर वेब कंटेंट पॉलिटिकल डिबेट्स का सब्जेक्ट बन जाते हैं. After the huge uproar after the release of Tandav, Family Man के makers and the streaming platform had delayed the release of Family Man 2, the second season of the popular show starring Manoj Bajpayee as Shrikant Tripathi. अब क्या ये सीजन अपने शेड्यूल्ड डेट पे स्ट्रीम होगा या फिर कंट्रोवर्सीज और सोशल मीडिया फाइट्स में फंस के रह जाएगा? The Family Man is based on the story of Manoj Bajpayee's struggle to be a good husband and father, while also performing his duties as an expert intelligence officer, जो आतंकवादियों के खिलाफ देश की सुरक्षा करते हैं. पहले सीजन के सक्सेस के बाद ऑडियंसेस ईगरली सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे. साउथ की सुपरस्टार समांथा अकिनेनी के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की न्यूज सुन के the buzz around the project was even greater. ट्रेलर में समांथा राजी का रोल प्ले कर रही है और एक रिबेल सोल्जर के रोल में नजर आएंगी. इट सीम्स समांथा का रोल श्रीलंका में अपने हक के लिए लड़ रहे तमिल सेपरेटिस्ट से इंस्पायर्ड है. ट्रेलर में समांथा तमिल में बोलती नजर आती है एंड द एक्शन इन द शो आल्सो सीम्स टू बी सिचुएटेड लार्जली इन चेन्नई. While the full story can be known only after the show releases, शो के ट्रेलर से तमिल ऑडियंसेस काफी नाराज हैं. Those sharing their anger online feel कि इस शो में तमिल्स को आतंकवादियों की तरह डिपिक्ट किया है और उनकी सेपरेटिस्ट लड़ाई को ISI की एंटी इंडिया एक्टिविटीज के साथ जोड़ा गया है, which they find objectionable. कई लोगों ने अपना एंगर जाहिर करते हुए सोशल मीडिया के पोस्ट शेयर किए हैं with the hashtag #FamilyMan2 against Tamils. However, the trailer is also getting a huge positive response from people जो इस नए सीजन को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है. एक्टर शारद हाशमी, जो इस सीरीज में मनोज बाजपेयी के टीम मेंबर का रोल प्ले कर रहे हैं, has also clarified that there is nothing objectionable in the series and he is glad that after a long wait ये फाइनली जून में स्ट्रीम होने जा रही है.
सलमान बने लोगों के मोस्ट बिलव्ड स्टार। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगा के पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में दिया महत्वपूर्ण योगदान। पैंडेमिक के सेकेंड वेव ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर डाला है। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ आर स्ट्रगलिंग टू मैनेज द ह्यूज नंबर ऑफ केसेस। ऐसे में कई सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स ने आगे बढ़ के लोगों की मदद की है। From amplifying posts for help on social media to directly contributing funds, medicines and medical equipment, celebrities are using their influence to help those in desperate need. पैंडेमिक के सेकेंड वेव में कई लोग मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में कई एनजीओ और सेलिब्रिटीज ने मिलके लोगों की हर तरह से मदद करने की कोशिश की है। Celebrities like Salman Khan, Sonu Sood, Priyanka Chopra Jonas have been mobilizing funds and collaborating with organizations who are offering assistance on ground. सलमान ने पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान लोगों तक खाना और राशन पहुंचाए थे। इस साल भी उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स तक खाना पहुंचाया है और अब उन्होंने 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी अरेंज किए हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोलैबोरेट करके सलमान इन कॉन्सेंट्रेटर्स की फैसिलिटी लोगों तक पहुंचाएंगे और वो भी विदाउट एनी फी। जब एक पेशेंट का यूसेज खत्म हो जाए तो कॉन्सेंट्रेटर को सैनिटाइज करके अगले पेशेंट को दिया जाएगा। Salman announced the arrival of the concentrators on social media and wrote, "Our first lot of 500 oxygen concentrators have reached Mumbai. Positive patients who need these oxygen concentrators for an emergency situation can call us." Within no time of Salman sharing this post, his fan followers and well-wishers showered him with love and praise. सलमान के दबंग 1 के को-स्टार सोनू सूद भी लोगों की मदद कर रहे हैं। सोनू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए डॉक्टर से रिक्वेस्ट की है कि वो पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के लिए प्रिस्क्राइब हो रहे मेडिसिन के कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट करे, क्योंकि कुछ एरियाज में प्रिस्क्राइब किए जा रहे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। इट्स क्रेडिबल टू सी कि लोग कितने सेल्फलेसली एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। होपफुली इसी एकता और सहयोग से हम इस मुश्किल का सामना कर पाएंगे। अरे आई थॉट आप लोग कहते थे कि हम दोस्त थे, अब कंपटीशन बन गए। Stop it now. Stop it now. It's not just ignorance, but it's also racist. All of us are here to just do our jobs and we're really no one to decide anything. I am very intelligent. I am very intelligent. बॉलीवुड की सभी लीडिंग लेडीज गोर्जियस, परफेक्टली ड्रेस्ड और इमेंसली टैलेंटेड है। While they are each on their individual path in the business, मीडिया उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर करती रहती है। And this doesn't always go down well with our B-Town beauties. ऐसे कई oops and ouch inducing moments आज हम आपको दिखाते हैं। एक वक्त था जब बॉलीवुड के कैट फाइट्स काफी मशहूर थे। Whether it was the rivalry between Sridevi and Jayapradha or the Cold War between Kareena and Bipasha, women actors were not always the BFFs they now claim to be on social media. Check it out. Alia and Kareena. While they may soon be Nanand and Bhabhi, एक वक्त था जब आलिया को बेबो से बार-बार कंपेयर किया जाता था। Many called her a junior avatar of Bebo after her glamorous debut in Student of the Year, and this didn't go down too well with both these divas. एक अवार्ड फंक्शन के दौरान जब आलिया से पूछा गया अबाउट बेबो के साथ उनके कंपैरिजंस के बारे में, तो she replied saying कि करीना कपूर खान तो one and only है and she is completely different. So I think there's only one Bebo and only one Kareena Kapoor Khan. और मैं कुछ और ही हूँ। I don't think it's the same. इन comparisons को अब बंद कर देना चाहिए। Well, all's well that ends well. दीपिका and प्रियंका। दीपिका पादुकोण and प्रियंका चोपड़ा जोनस भले ही ऑन स्क्रीन सौतन थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी दोस्ती काफी चर्चे में थी।
लेकिन जब प्रियंका से पूछा गया दीपिका के इंटरनेशनल सक्सेस के बारे में, शी शट डाउन द रिपोर्टर बाय सेइंग कि शी विल ऑलवेज होप कि सभी अपने करियर्स में कामयाब हो। किसी और के सक्सेस और फेलियर से मेरे करियर का कुछ लेना देना कभी नहीं था। आई होप कि जिस तरह का काम मैंने किया है, जिस तरह का झंडा मैं गाड़ने की कोशिश कर रही हूँ इंडियन एक्टर्स और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए, आई होप कि बहुत सारा इंडियन टैलेंट, ना सिर्फ इंडियन, साउथ एशियन टैलेंट या ग्लोबल टैलेंट जिनको एंट्री नहीं मिलती है ग्लोबल एंटरटेनमेंट में, उनको वो दर्जा मिले। आई होप सो। वहीं जब दीपिका से पूछा गया कि जब अमेरिकन प्रेस ने उन्हें प्रियंका के साथ कंफ्यूज किया तो उन्हें कैसा लगा, शी शेयर्ड that not just her and Priyanka, but everyone should be offended by such racist comments. It's not just about me being offended. Every single one of you in this room should be offended because it's not just ignorance, but it's also racist. Two people of similar color are not the same people. Janhvi and Sara. Janhvi and Sara are amongst the rising talents in the industry and very often दोनों के बीच comparisons हो ही जाती है। लेकिन it looks like these two young stars are handling things quite maturely. जब जानवी से कहा गया था सारा को टिप्स देने के लिए, she just smiled and said कि सारा बहुत टैलेंटेड है और उन्हें जानवी से टिप्स लेने की जरूरत नहीं। नहीं, उनको मेरी टिप्स की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, उनको मेरी टिप्स की कोई ज़रूरत नहीं। वहीं सारा से जब पूछा गया कि क्या अवार्ड शोज में उनका और जानवी का बेस्ट डेब्यू के लिए फेस ऑफ होगा, she too replied very calmly and said कि सभी अच्छा काम कर रहे हैं and awards are not something she or Janhvi can decide. All of us are here to just do our jobs and we're really no one to decide anything, you know. She's done amazingly. I saw Dhadak. I thought she was fantastic. And I hope everybody's loved her work and I hope that people, you know, like my work too, God willing. And then the rest is whatever happens. Kareena's comparison to Deepika and Priyanka. Kareena is amongst the few actors in her generation who has chosen not to do Hollywood projects. She is often compared to her colleagues Deepika and Priyanka about this. और एक बार जब उनसे ऐसे ही सवाल किया गया during an event, उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि उनकी ब्रांड वैल्यू हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है और बॉलीवुड में भी उनकी वैल्यू काफी स्ट्रॉन्ग है। आप हॉलीवुड में काम कर रहे हो, यहाँ काम कर रहे हो, आई थिंक योर ब्रांड वैल्यू इज एज मच एज यू डिलीवर एंड आई थिंक इट इज एज मच एज व्हाट योर पर्सनालिटी इज। हर एक ब्रांड की एक पर्सनालिटी होती है। प्लैनेट बॉलीवुड में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। एक वक्त था जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था। There was this perceived gap between movie stars and television actors. लेकिन thanks to social media, आज स्क्रीन्स छोटी होती जा रही हैं और सेलिब्रिटीज बड़े। Here are the top stories making headlines today. श्वेता तिवारी के एक्स हस्बैंड राजा चौधरी ने अफसोस जाहिर किया है, saying that it's unfortunate कि श्वेता तिवारी की दूसरी शादी टूट रही है। राजा चौधरी का कहना है कि श्वेता तिवारी एक बहुत ही अच्छी माँ और पत्नी है, but she seems to be making the wrong choices. श्वेता तिवारी in the meanwhile is in Cape Town, जहां वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में हिस्सा ले रही हैं। She shared a cool new video from the location where she looks stunning in a pair of green track pants and white tank top. तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के अगेंस्ट केस रजिस्टर हो चुका है अंडर SC/ST एक्ट फॉर हर ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स फॉर SC/ST कम्युनिटी। मुनमुन दत्ता शो में बबीता का कैरेक्टर प्ले करती हैं। माही विज हैज क्लैरिफाइड कि वो और उनके हस्बैंड जय भानुशाली अपने केयरटेकर के बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, दो दे हैव नॉट लीगली अडॉप्टेड द चिल्ड्रन। माही विज का कहना है कि वो सभी एक प्यारे परिवार की तरह रहते हैं एंड द चिल्ड्रन कॉल हर एंड जय भानुशाली मम्मा एंड डाडा। राहुल वैद्य केप टाउन में एक रियलिटी शो के लिए शूट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वक्त निकालकर अपने फैंस के साथ एक लाइव इंटरैक्शन किया। उनकी फियांसे दिशा परमार ने भी उन्हें इस लाइव सेशन में ज्वाइन किया एंड बिकेम अ बिट इमोशनल व्हेन राहुल वैद्य sang a romantic song। जब दिशा परमार से फैंस ने पूछा कि क्या वो रो रही हैं, तो दिशा परमार jokingly responded that she is just a bit emotional to see राहुल वैद्य, लेकिन वो रो नहीं रही थी। She added jokingly कि उनकी शक्ल ही ऐसी है, which amused their fans who had joined the session। कोई पूछ रहा है आप रो रही हो क्या? Don't get ये मेरा चेहरा ही ऐसा है, क्या करूं? I get emotional seeing राहुल।
बॉस लेडी रुबीना दिलाइक रिकवर हो चुकी हैं फ्रॉम पैंडेमिक रिलेटेड वायरस। रुबीना दिलाइक जो अंडर क्वारंटीन थी फॉर द पास्ट 19 डेज, उन्होंने अपने रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट में वो 5 चीजें रिवील की हैं जिन्होंने रिकवरी में उनकी हेल्प की। एक्ट्रेस आविका गौड़ ने कुछ महीनों पहले मिलिंद चंदवानी के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था। The actor has now said कि अगर उनसे कहें कि उन्हें कल ही शादी करनी है तो वो तैयार है। Though she feels she is too young to get married right now, she is sure that Milind Chandwani is that someone special she can spend her life with. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But you guys, please stay home and stay safe.